Manshita Shah, and today I am going to tell you about some Bengali language. Bengali language is the most sweet language as called in the West Bengal in India. Currently I am studying in class 9 and I am representing here Bengali language. So the Bengalis are must love fish curry with rice, and they also like to eat sandesh, rasgulla and mishti doi. Durga Puja is the most important festival of the Bengalis. They celebrate Poila Boishakh, Posh Sankranti, etc. and many more festivals. Shri Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Ramakrishna Paramhansa and Ma Sharda Devi are the most famous personalities of Bengal. Netaji Subhash Chandra Bose and Shri Ravindranath Tagore are the responsible that Bengali is our second national language today. And thank you. अब मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम अंशिता शाह है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने बंगाली भाषा का प्रतिनिधित्व करना चाहूँगी। और बंगालियों को मछली और चावल खाना बहुत ही पसंद है। खाने के बाद उन्हें रसगुल्ला, मिष्टी दोई और इसके बाद संदेश खाना भी बहुत पसंद है। ये उन्हें हर खाने के बाद चाहिए ही होता है। बंगालियों का मुख्य त्यौहार दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा के साथ ही साथ वे पौष संक्रांति और पहला वैशाख जैसे त्यौहार भी मनाते हैं। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा देवी जैसे महान व्यक्तियों के कारण ही आज महान व्यक्ति जो कि है बंगाल में ही जन्म हुआ है उनका। श्री रविंद्रनाथ टैगोर और श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों के कारण आज बंगाली हमारे राष्ट्र की दूसरी राष्ट्रभाषा है। নমস্কার, আমার নাম অঞ্চিতা শাহ হচ্ছে। আজকে আমি আপনি সবাই দিককে বাঙালি ভাষায় প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। আর আজকে আমি আপনাদেরকে বাতাতে চাই কি বাঙালি ভাষায় কত মিষ্টি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে। বাঙালি দিককে মাছের ঝোল আর ভাত খেতে খুবই ভালোবাসে। এরা সন্দেশ, রসগোল্লা আর মিষ্টি দই খাবারের পরে একদম খাইয়ে। দুর্গা পূজা যে হচ্ছে ওটা বাঙালিদের প্রমুখ त्यौहार হচ্ছে। ওরা খুবই ভালোবাসে এটাকে। এদের সাথে সাথে ওরা পয়লা বৈশাখ আর পৌষ সংক্রান্তির মতন त्यौहारও মানায়। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री श्री चैतन्य महाप्रभुर মতন মহান লোকরা যে বাঙালি জন্ম হয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আর শ্রী রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের জন্যই আজকে বেঙ্গলি আমাদের রাষ্ট্রের দ্বিতীয় ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Today I am going to tell you about myself and about Kerala, from where I belongs to. എൻ്റെ പേര് കൈലാഷാണ്. ഞാൻ കേരള സ്വദേശിയാണ്. കേരളത്തിൽ മൊത്തം 14 ജില്ലകളാണുള്ളത്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടാണ്. അവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഷ മലയാളമാണ്. കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് കേരളം. മലകളും പുഴകളും നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പുകളും കേരളത്തിനെ മനോഹരിയാക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന കലയാണ് കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം, കളരിപ്പയറ്റ് തുടങ്ങിയവ. പ്രധാനമായും മുണ്ടും സാരിയുമാണ് അവിടുത്തെ വേഷം. ഞാൻ എൻ്റെ നാടിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। मेरा नाम कैलाश है। मैं केरल का निवासी हूँ। सन 1956 में नवंबर 1 को केरल को स्थापित किया गया था। केरल में पूरे 14 जिले हैं, जिसमें पालक्काड सबसे बड़ा जिला है जहाँ मैं रहता हूँ। और केरल की बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। और केरल
केरल में नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और केरल की संस्कृति कथकली, मोहिनीअट्टम और कलरीपयट्टू है। यहाँ के लोग मुंड, साड़ी पहनते हैं। धन्यवाद। आपकी छात्रा, मैं आज आप सभी के समक्ष मराठी भाषा में कुछ महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली। मुंबई ही महाराष्ट्र राज्याची राजधानी आहे। गोदावरी आणि कृष्णा या महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख नद्या आहेत। येथे गणेश चतुर्थीचा सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो। सिद्धिविनायक मंदिर हे महाराष्ट्र राज्यातील गणपतीचे अतिशय प्रसिद्ध मंदिर आहे। इथे मुंबई येथे आहे। महाराष्ट्र राज्यात वडापाव, पुरणपोळी, मिसलपाव इत्यादि व्यंजन प्रसिद्ध है। अब मैं आपको ये हिंदी में बताना चाहूँगी। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा है। यहाँ गणेश चतुर्थी का त्यौहार यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में पुरणपोली, मिसल पाव आदि व्यंजन प्रसिद्ध है। धन्यवाद। सभी के सामने ओडिया में ओडिशा राज्य के बारे में बताना चाहती हूँ। नमस्कार, मो ना आकृति महांती। मु कक्षा 10 रे पढ़ुची आउ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 रे। ओडिशा राज्यर भाषा ओडिया अच्छी। आउ ओडिशार किसी फेमस पर्यटन स्थल पुरी जगन्नाथ, कोणार्क सन टेम्पल आउ चिल्का लेक भी अच्छी। चिल्का लेक दुनिया का सबुठ बड़ सॉल्ट वाटर लेक आउ शीत दिन से अलग अलग प्रकार पक्षी मैंने आसुचुती। ओडिशार किसी प्रमुख व्यंजन होची छेनापोड़, काकरा पिठा आउ मंडा पिठा। अब मैं आपको यही सब हिंदी में बताना चाहती हूँ। ओडिशा राज्य की भाषा है ओडिया। ओडिशा में कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं: जगन्नाथ पुरी, चिल्का लेक और कोणार्क का सन टेम्पल। यहाँ की कुछ प्रमुख व्यंजन हैं: पोड़ो पिठा, काकरा पिठा और मंडा पिठा। ओडिशा का जो प्रमुख फोक आर्ट है वो है पटचित्र। धन्यवाद। Everyone, I am Mani Soni. Today I am on the occasion of Bharatiya Bhasha Utsav. I am going to talk about the importance of Indian languages. So let's start. India has a rich linguistic heritage. The National Education Policy 2020 highlights multilingualism and visualizes Indian languages as a great tool for national unity. It suggests that the students of the country should be encouraged to learn the importance of Indian languages under the Ek Bharat Shresth Bharat initiative. Indian languages share common phonetics and scripts. Their diversities are also linguistically as rich as their inter-influences. Celebrating Bharatiya Bhasha Utsav will give us all a sense of unity and introduce us to a beautiful cultural heritage and diversity of India. From Kashmir to Kanyakumari, there are hundreds of languages spoken in India. Despite so many languages, we live together with love and peace. Diversity in unity is a unique feature of our country, and languages bind everyone together. Bharati languages have coexisted, complemented and nurtured each other throughout the ages. Languages shape mind wisdom of the society and bring people together. There is a need to strengthen language harmony to develop a conducive environment for learning more and more Indian languages. Apart from mastering one's own mother tongue and an attitude to love and enjoy the neighboring languages.
To catalyze this enthusiasm, it is proposed to observe Bharatiya Bhasha Utsav on 11 December on the Janma Jayanti of Subramanya Bharati, the great nationalist poet. He was popularly known as Mahakavi Bharati, a freedom fighter and a social reformer in Tamil Nadu. He was one of the first to speak about India as one entity. He gave emphasis on the need for national integration and motivated Indians to ignore religious differences and think of all as one term, that means Indians, in his writing. Though Mahakavi Bharati was conversant with 11 languages, he emphatically declared in one of his poetic works that the sweetness of Tamil language is unparalleled. He cautioned against contradictory in linguistic expression and aspired for recognition to work in simple Tamil, indeed a far-sighted appeal. As it emanated from across the country, he applied the knowledge of the illustrious past to contemporary realities and dreamt of shaping a new, brighter future. It will be celebrated as a full day of Bhasha Utsav in universities, colleges and schools across the country. Students, faculty, parents and society members will participate in various cultural activities throughout the day. The concept of Bharati Bhasha Parivar is to celebrate the rich variety and wonders of Bharati Bhasha, to show how languages learning can be fun and enjoyable experience, and to highlight the need to focus on Bharati Bhasha for the development of nation and Ek Bharat Shresth Bharat. Thank you and have a nice day. Today I present a slogan in front of you in the occasion of Bharatiya Bhasha Utsav. India has many languages and we need to be proud of every language in our country. Thank you. God is good to you.
अच्छा है, ईशु अच्छा है, ईशु अच्छा है तुमको। ईशु अच्छा है, ईशु अच्छा है, ईशु अच्छा है मुझको। ईशु भालो छे, ईशु भालो छे, ईशु भालो छे सबर बोल। ईशु भालो छे, ईशु भालो छे, ईशु भालो छे तुमर बोल। ईशु भालो छे, ईशु भालो छे, ईशु भालो छे अमर बोल। धन्यवाद। भारतीय भाषा उत्सव के अंतर्गत मैं कुछ भाषाओं में आप लोग को गाना सुनाना चाहती हूँ, थोड़ी ऊपर ध्यान में दें। तमिल में सुनेगा। मुनबेवा अनबेवा उड़ेवा उइरेवा मुनबेवा अनबेवा उड़ेवा उइरेवा नाना केटे निन्ने नाले नाइया निंजम सुन्नदे मुनबेवा अनबेवा उड़ेवा उइरेवा मुनबेवा अनबेवा पुपुवा पुपुवा। ओडिया में एते हृदय को छुईलु तू, एते भल मते पाइलु तू, मने तले मोरे हेला हलचल। हाय हंसई तोरा हाथ बुणारे सुमिरुमान, हाय तो प्रेम गजल 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 गजल। हाय तो प्रेम गजल 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 गजल। लास्ट पंजाबी। ओई तोर मायाबी जो काजल होए जाबो, आकाश होए जा तुई आंचल होए जाबो, आमार होए जा तुई আমি তোর হয়ে যাব। একবার ডেকে যা তুই বারবার চলে যাব, তোর দুষ্টমিতে আর আমি ইচ্ছে মেশাব। ওড়ি পাঞ্জাবি। पंजाबी सुनेगा। अज तो होया है मेरा कन सुनना चांदे ना तेरा, तू अज तो होया है मेरा कन सुनना चांदे ना तेरा। मैनू सुपने आंदे ने वे तू चढ़िया फिरदा घोड़ी तेरी मेरी अड़ियावे, लकोट च बटना दी जोड़ी तेरी मेरी अड़ियावे, लकोट च बटना दी जोड़ी तेरी मेरी। के अंतर्गत आज विद्यार्थियों ने, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कई भाषाओं में उन्होंने बोला, मलयालम, मराठी, बंगाली, उड़िया। हमारे टीचर शिक्षक ने गीतों को गाया है, अलग अलग भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति को दी है। तो आप सभी को इस अवसर पर, भारतीय भाषा उत्सव के अवसर पर आप सभी बच्चों को, शिक्षकों को, सभी को बधाइयाँ। ये जो भाषा उत्सव है, इससे हम एक दूसरे भाषा से कनेक्ट होते हैं। हम अपनी भाषा तो बोलते हैं, अपनी बोली तो बोलते ही हैं, साथ ही जिन बच्चों के साथ या हम अपने वर्किंग प्लेस में, कार्यस्थल में और अन्य अन्य लोगों से मिलते हैं, उनकी भाषाओं से भी हमारा परिचय होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी हो, चाहे स्कूल में या फिर किसी भी जगह जहाँ आपको ये अवसर मिले कि आप भाषाओं को सीखें, बोलियों को सीखें, ज़रूर सीखें, क्योंकि भाषा जो है, बोली है, एक दूसरे से हमें कनेक्ट करती है, एक दूसरे की विचारों को
और उनकी बातों को समझने में हमें सहायता करती है। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। आज आप नॉर्थ इंडिया में हैं, उत्तर भारत में, मध्य भारत में हैं, कल आप बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में हो सकते हैं, ईस्टर्न एरिया में हो सकते हैं, साउथ इंडिया में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं और अपने कार्य से एक दूसरे को प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकते हैं। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कई भाषाओं से आपका सामना होता है, तो बेहतर ये है कि हम अपनी भाषा को जानते हुए उसका प्रयोग करते हुए वहाँ की भी भाषा बोली का प्रयोग करें, सीखें। और जैसे हमने ये जाना है और माना है कि इस भारतीय भाषा उत्सव को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम हर एक भाषा को आदर और सम्मान दें और ये जो है एक दूसरे भाषा के प्रति इट शोज द अफेक्शन, लव एंड द रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेबरिंग लैंग्वेजेस। तो आप सभी को बधाइयाँ और अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी बच्चों को मैं धन्यवाद करती हूँ, टीचर्स को भी। एक शॉर्ट नोटिस में हमारे पास ये कल हेडक्वार्टर से मैसेज आई थी कि भारतीय उत्सव भाषा जो भारतीय भाषा उत्सव है मनाई जानी है। कल बच्चों ने ड्राइंग, पेंटिंग और स्लोगन लिखे और आज बहुत अच्छी असेंबली हो पाई। इसके लिए मैं सभी बच्चों को, शिक्षकों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आज एक बच्ची ने मॉर्निंग असेंबली में स्पेशल आइटम में भी बताया ऑन दी सेलिब्रेशन ऑफ द क्रिसमस। सो क्रिसमस जो है 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पूरे एक महीने मनाई जाने वाली जो है फेस्टिवल है, उत्सव है। एंड दिस इज द ग्रेट न्यूज़।